मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, कुछ जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, घोंसला कैसे बनता है? वो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। With these wonderful words, I, Sunil Mishra, heartily welcome you all. So today I'm going to teach you one of the most interesting chapter of grade 10th mathematics, that is dash. You have to guess the name of this chapter. Okay, so let me give you a clue. So let's suppose you want to measure the height of this mountain. How you're going to measure it? Which branch of maths do you use? Okay, so let me tell you. Using trigonometry, you can easily measure the height of this mountain. And do you know what is the height of highest peak in the world? That is Mount Everest. The height of Mount Everest is 8,849 meter. And do you have any idea who measured the height of Mount Everest? Okay, let me tell you. The height of Mount Everest was measured under British Survey of India. So Britishers decided to map entire Indian subcontinent so that they can rule India in more efficient way. So they started making maps. So for that they used trigonometry. And Indian mathematician and surveyor Radhanath Sigdar in the year 1852 calculated the height of Mount Everest. And earlier the Mount Everest was known as Peak 15. And in Nepal it is called Sagarmatha. And in Tibet we call Mount Everest as Chomungla Mountain. So Sir George Everest was the director of Survey of India, and he appointed Radhanath Sigdar, a mathematician from West Bengal, to the post of computer. So computer was basically a post who do all trigonometric calculations. So let's start chapter 8, that is Introduction to Trigonometry. The word trigonometry is made up of three Greek words. So what are these three Greek words? The first word is tri. Tri means three, and second word is gon. Gon means sides, and third word is metron, and metron means measurement. So trigonometry is a branch of mathematics that gives the relationship between sides and the angles of triangle. In grade 10th, we'll apply trigonometry in right angle triangle. So in this chapter, we are going to study about trigonometric ratios in case of right angle triangle. So let's learn who is the father of trigonometry. So he's Hipparchus. So Hipparchus is considered as the father of trigonometry, and he's from Nicaea, and Nicaea is in Greece. So he used trigonometry in astronomy and geography. So he's considered as one of the greatest astronomical observer. ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को समझने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे जहां पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्वेश्चंस को बड़ी चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और एंगल बी पर 90 डिग्री है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं, और इसके हेल्प से हम साइड्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब राइट एंगल के सामने वाली साइड को हमने एक स्पेशल नेम दिया है, और इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। सो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमने बाकी दो साइड्स को भी नाम दिया है। अब हमने बाकी दो साइड्स को नाम दिया है बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ आपको कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। सो देखिए, थीटा जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, अभी हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो एंगल सी हमारा गिवन एंगल है। तो एंगल सी के साथ लगती हुई साइड को हम बेस कहेंगे। अब यहाँ पे दो साइड है जो एंगल सी को टच कर रही है, वो है ए सी एंड बी सी। ए सी का नाम हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो जो दूसरी साइड है दैट इज बी सी, तो इसको हम बेस कहेंगे। साइड विच इज एडजेसेंट टू थीटा, दैट विल बी अवर बेस। एंड तीसरी साइड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, एंड दिस साइड विल बी अपोजिट टू थीटा थीटा। ठीक है, तो जो गिवन एंगल है उसके सामने वाली साइड जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर। ओके, सो अब हम इस थ्योरम की हेल्प से रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। ओके, सो सिंपल सी थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज है आपका AC, सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर विच इज बेस
बेस आपका BC है, so BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में। सो हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल B पर है एंड एंगल C इज थीटा। इस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। ओके, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए एक मैजिकल मंत्र है मेरे पास, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले एंड चाय समोसे छोले। ओके, सो ये है क्या, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा किन दो साइड्स का रेशियो है वो हम देखते हैं। सो साइन थीटा, सो थीटा है आपका एंगल सी। So sin theta is a ratio of perpendicular and hypotenuse. Okay, so perpendicular, let's say हम इन sides को नाम देते हैं अल्फाबेट्स पे so that it will be easy for us to write. So base BC इसको हम नाम देते हैं x, AB आपका perpendicular इसको हम नाम देते हैं y and hypotenuse AC को हम नाम देते हैं r. Okay, so sin theta is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Okay, perpendicular hypotenuse का रेशियो है तो थीटा के लिए perpendicular हो जाएगा y and hypotenuse is always fixed, it is the side opposite to 90 degree, that is r. Now हमारे पास जो second trigonometric ratio है that is cos theta. Okay, cos theta is the ratio of base and hypotenuse. Okay, so cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is side adjacent to theta which is x and hypotenuse is r. Now third trigonometric ratio is tan theta. So tan theta is the ratio of perpendicular and base. Okay, so perpendicular is a side opposite to theta, that means y, and base is x. So हमने यहाँ पे थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। अब हम इन रेशियो को रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। ओके, सो इन रेशियोज को हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। तो देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में हमने क्या क्या नाम दिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। नाउ हमारे पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट मींस फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cosec थीटा। Cosec theta will take in reverse order. It is a ratio of hypotenuse and perpendicular. Okay, so hypotenuse is r and perpendicular is y. Now next trigonometric ratio है हमारे पास sec theta. Sec theta is a ratio of hypotenuse and base. So sec theta is equal to hypotenuse which is r and base is x. And last trigonometric ratio है cot theta. Cot theta ratio है base and perpendicular का. Okay, so base है आपका x and perpendicular है आपका y. ओके, तो इस तरीके से हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ भी नहीं, ये साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो है। ओके, और यहाँ पे आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके बीच में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी है। जैसे कि आप देखें साइन एंड कॉसेक थीटा, इनकी आप अगर वैल्यूज को देखें y अपॉन r एंड r अपॉन y, सो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो वी कैन राइट दैट साइन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट रेसिप्रोकल या वन अपॉन ऑफ कॉस सेक थीटा। इसी तरीके से आप यहाँ पे कॉस और सेक के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं। कॉस सेक थीटा इज वन अप कॉस थीटा इज वन अपॉन ऑफ सेक थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन आर एंड सेक थीटा की वैल्यू है आर अपॉन एक्स। ओके, तो कॉस थीटा इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। तो यहाँ से हमने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी देख लिया। So let me explain you about law of sines and cosines. So this law of sines and cosines is not important for your board examination point of view, but you can learn for your competitive exams. So let's understand what is law of sine. So let's suppose we have a triangle ABC and we have represented side opposite to angle A by small a. In the same way, side opposite to angle B is represented by small b and side opposite to angle C is represented by small c. So according to law of sines, sine A upon A is equal to sine B upon B is equal to sine C upon C. And what is law of cosine? So according to law of cosine, cos A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC. In the same way, cos B is equal to A square plus C square minus B square upon 2AC. And cos C is equal to A square plus B square minus C square upon 2AB.
अगर आप एंगल ए के लिए फाइंड करेंगे कॉस लॉ ऑफ कोसाइन फाइंड करेंगे तो उस केस में एंगल ए को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आपका बी एंड सी आएगा। इन द सेम वे अगर कॉस बी यूज करेंगे तो उस केस में आप साइड बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर में से एंड डिनोमिनेटर में आपका ए सी आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप कॉस सी फाइंड करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करके तो उस केस में आप एंगल सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड नीचे आएगा ए बी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो इफ cos a इज इक्वल टू 4/5 देन हमें फाइंड करना है tan a की वैल्यू। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और अपने आप सॉल्व करिए। अगर नहीं होगा देन आप इसको दोबारा से प्ले करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिससे कि आप चीजों को क्लियरली विजुअलाइज कर पाए। तो आपने एक राइट ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लिया, एंगल बी 90 डिग्री है। ओके, और आपको क्वेश्चन में कॉस ए गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5। कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ओके, अगर नहीं पता तो आपको मैजिकल मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, और आप सबको पता है जो कॉस है दिस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। सो आप बेस 4 यूनिट कंसीडर कर लीजिए और हाइपोटेन्यूज आपके 5 यूनिट हो जाएगा। आपके पास बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। tan a को फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए क्योंकि tan जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ओके, सो आपके पास बेस तो है बट परपेंडिकुलर नहीं है। आपको यहाँ पे सबसे पहले BC फाइंड करना है। इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प करें लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप सबको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC दैट मीन्स 5, 5 का आप स्क्वायर करेंगे, AB इज 4 एंड BC आपको फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे -16 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 मिलेगा आपको इज इक्वल टू BC स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर BC विल बी इक्वल टू 3। आप यहाँ आपने यहाँ पे BC फाइंड कर लिया एंड BC इज इक्वल टू 3 यूनिट। आप इजिली आप tan a की वैल्यू बता सकते हैं। tan is the ratio of perpendicular and base. Perpendicular is 3 unit and base is 4 unit. So tan A is equal to 3/4. So option B is correct. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। इफ sin A is equal to 1/2 then what is the value of cot A? तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को पॉज करना है और अपने आप सॉल्व करना है। अगर नहीं आएगा then I will explain you. So let me explain you how you are going to solve this question. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल का नाम भी देते हैं ABC। आपको साइन ए गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। और आपको सबको पता होना चाहिए साइन जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। सो इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर आपने 1 यूनिट कंसीडर किया तो हाइपोटेन्यूज आपका 2 यूनिट हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे कॉट ए फाइंड करना है और आपको पता है कॉट जो है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। आपके पास बेस नहीं है तो सबसे पहले हम ये बेस ए भी कैलकुलेट करेंगे, देन आप इजीली कॉट ए की वैल्यू लिख पाएंगे। बेस को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी। और आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इज 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, AB आपको कैलकुलेट करना है और BC इज 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी √3। आपने AB फाइंड कर लिया, AB आपका निकल गया है √3 एंड अब आपको कॉट ए की वैल्यू लिखनी है। ओके, कॉट ए इज द रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस है AB दैट मीन्स √3 एंड परपेंडिकुलर इज 1। सिंपली आप लिख देंगे कॉट ए इज इक्वल टू √3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 4 tan थीटा 3 गिवन है और आपको यहाँ पे फाइंड करनी है 5 टाइम्स ऑफ cos थीटा अपॉन 4। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे आप थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से दिस इज थीटा। ओके, एंड यहाँ पे आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/4। अब आप इन वैल्यूज को राइट एंगल ट्राइंगल में लगा देंगे। tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अगर आप परपेंडिकुलर को 3 यूनिट्स कंसीडर करोगे तो उस केस में बेस आपका 4 यूनिट हो जाएगा। परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4। अब आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 16 प्लस 9 इज 25। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हाइपोटेनस की वैल्यू आपने फाइंड करी, दिस इज इक्वल टू 5। अब आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। ओके, सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5। अब आप वैल्यू cos थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में आप रख देंगे। सो 5, 4 को आप 5 के नीचे लेते हैं, 5/4 टाइम्स ऑफ cos थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट 1। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे आपको 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 गिवन है और आपको इवेल्युएट करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका तो बेसिक तरीका है, ठीक है, एंड इसको आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो सेकंड मेथड है वो थोड़ा फास्ट ट्रैक मेथड है। तो आपको अगर क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक तरीकों को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है और यहाँ पे हम थीटा मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन में आपको 3 tan थीटा 4 गिवन है, तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इजिली। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। और आपको पता है tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर अगर आप 4 यूनिट कंसीडर करेंगे, सो बेस आपका 3 यूनिट हो जाएगा। सो थीटा के साथ लगती साइड बेस, दैट मीन्स 3, एंड परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड 4। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। सो हाइपोटेनस हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, ऐड करेंगे 25 मिलेगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 मिलेगा। तो इजिली आप यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनस आपका 5 आ गया। अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनस है 5, तो साइन थीटा आपने फाइंड कर लिया, 4/5 हो गया। अब आप कॉस थीटा फाइंड करेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 3 और हाइपोटेनस है 5। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सके, कर ली हमने। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को एक्सप्रेशन में रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो आपका एक्सप्रेशन है 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, तो 3 टाइम्स ऑफ 4/5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ 3/5 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा, 3 टाइम्स ऑफ 4/5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, 2 टाइम्स ऑफ 3/5। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सो 12/5 प्लस 6/5 अपॉन 12/5 माइनस 6/5। 6 प्लस 12 18, 18/5 अपॉन 6/5। 5 and 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यूल गेट 18/6 एंड 18/6 इज इक्वल टू 3। तो ये तो आपका एक बेसिक तरीका है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे तब आप इसे कैसे करेंगे। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो tan थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। tan थीटा sin थीटा cos थीटा का रेशियो होता है और आपको क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3। सो आप sin थीटा को कंसीडर कर सकते हैं 4 और cos थीटा को 3 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो ये आप क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। ओके, तो आप यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 4 रख देंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, दैट मीन्स 3। 4 प्लस 3 12 प्लस 6 अपॉन 12 माइनस 6। सो न्यूमरेटर में आपको 18 मिलेगा, डिनोमिनेटर में आपको 6 मिलेगा। सॉल्व करेंगे यूल गेट 3। तो आप देखिए दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है, तो आपके पास दोनों ही तरीके हैं। जो भी आपको बेटर लगता है आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। So let's start this question by drawing a figure of triangle PQR. So we'll draw a triangle PQR in which right angle is at Q and PQ is equal to 5 centimeter. So base is 5 centimeter. Sum of PR and QR is 25. PR and QR, the sum of these two sides is 25 centimeter. So we will solve this question by using Pythagoras theorem. So we'll apply Pythagoras theorem in triangle PQR. So it gives PR square is equal to PQ square
plus of QR square. PR square minus RQ square is equal to PQ square. We can factorize this expression as PR plus QR and PR minus QR. This is equal to PQ square. We know the value of PR and plus QR. This is equal to 25, so we'll write here 25, and this gives PR minus QR, and PQ square. PQ square, that means 5 square. So 5 square is 25, and PR minus QR, and this 25 goes in division. So from here we will get PR minus QR is equal to 1. We have two equations. First equation is PR minus QR is equal to 1, and second equation is given the question that PR plus QR, the sum of these two sides is 25. We'll solve these two equations. We'll add these two equations and we will get twice of PR is equal to 26, and from here PR is equal to 26 upon 2, that means 13. So PR is equal to 13 centimeter, and if PR is 13, then QR is equal to 12 centimeter. Now we can easily find the value of sine P. Sine P, sine is perpendicular upon hypotenuse, that means RQ upon PR. RQ is 12 and PR is 13. Cos P, base upon hypotenuse. Base is PQ, that means 5, and hypotenuse is 13. And then tan P. So tan is a ratio of perpendicular and base. Perpendicular is 12 and base is 5. So by this way we have solved this question. I hope this is clear to you all. Let's start last question of today's session. In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of these two expression. So आज हम first वाला complete करेंगे, and जो second part है, that is your homework, you will try by yourself. तो first part solve करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आप एक right angle triangle draw करते हैं. Right angle triangle को नाम देते हैं ABC. Angle B 90 डिग्री है. क्वेश्चन में आपको tan A given है. tan A is equal to 1 by root 3. आप सबको पता होना चाहिए tan जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है. एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, दैट मींस BC 1 यूनिट आपने कंसीडर कर लिया, और बेस हो जाएगा AB. AB आप रूट 3 यूनिट कंसीडर कर लीजिए. पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप AC फाइंड कर लेंगे, और बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 4 और अंडर रूट निकालेंगे तो AC आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स. अब आपको साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि ये वैल्यूज आपको एक्सप्रेशन में रखनी होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं. साइन अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है. एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा 1 और हाइपोटेन्यूज इज 2. फिर आप फाइंड करेंगे कॉस सी. कॉस सी इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल सी के लिए बेस होगा BC. सो BC इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2. अब आप फाइंड करेंगे कॉस ए. कॉस ए, सो एंगल ए के लिए बेस होगा रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2. फाइनली आप फाइंड करेंगे साइन सी. साइन सी इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा रूट 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज साइड अपोजिट टू राइट एंगल विच इज 2. तो आपने यहाँ पे फॉलोइंग मतलब साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यू फाइंड कर लिया. अब ये वैल्यूज आप एक्सप्रेशन रख के इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन ए को रखेंगे. साइन ए की वैल्यू 1/2 है. देन कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू देखिए रूट 3/2, और साइन सी की वैल्यू भी रूट 3/2 है. तो सॉल्व करते जल्दी से. 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4. रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 3. 2 2 4. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे 4/4. ओके, और आपको मिल जाएगा 1. तो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका आपके लिए कंप्लीट कर दिया है. सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे. ओके, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं. वहां पे आप NCERT की 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो दैट्स फॉर टुडे. आई होप यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए. ओके, बाय.